करेंगे आज के हमारे इस पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम के लॉन्च इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया सर का। हम अनुरोध करेंगे सर से और अपने एस्टीम डिग्निटरीज से कि लाइटिंग ऑफ लैम्प करें। डिग्निटरीज फॉर डूइंग द ऑनर्स, मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम एंड एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया, who is an inspiring and towering presence for all of us, our Principal Secretary Education, our Director Education, and Chairman DCPCR to please take their seats on the dais. Thank you. The will to win, the desire to succeed. Parent Samvad program is indeed a way to proceed. Proceed to reach our full potential, to unlock the door to our students' excellence. School Mitras, parents, and SMCs will work in collaboration to empower the administration and teachers in their aspiration to gear up and take our schools on roads of success and self-reliance. A very happy good morning to you all. On behalf of Directorate of Education, it is indeed our pleasure to welcome you to the launch of Parent Samvad, Parents Outreach Program event today. Today's program is another innovative step and yet another milestone in this journey of educational reforms in our Delhi government schools. Ladies and gentlemen, we are all aware that school is termed as the best performing school when all stakeholders are involved in the overall development of the students. SMCs were envisaged under the Right to Education Act as a means of increasing parents' participation in governance of schools for monitoring, accountability, and to act as a bridge between parents and schools. जब DOE में schools में पहली बार SMC constitute करने का circular आया, तो there was a lot of apprehension and skepticism. कई HOS ने कहा, wow, another milestone in the education revolution. कईयों ने कहा, अरे अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्स चलाएंगे। फिर कईयों ने बोला, अब क्या पेरेंट्स स्कूल चलाएंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन बहुत जल्दी ये सब क्लियर हो गया कि सिर्फ एसएमसी के पेरेंट्स जो सेल्फलेसली हम सबके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ स्कूल्स को क्लीन करवाया, उन्होंने स्कूल्स में जो बच्चे नहीं आ रहे थे उनके घर जा जाके बच्चों को स्कूल बुलाया. They also helped us in organizing summer camps, reading melas and whatnot. Today is the day, ladies and gentlemen, to acknowledge the selfless service of all our SMC members. So let's have a big round of applause for the SMC members जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के हमारे HOS और टीचर्स के साथ एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करा जो आज ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में एम्यूलेट हो रहा है. Going forward and learning from our experience, we realized that the 16 SMC members are not enough to reach out to parents where the school enrollment is very high. And thus came the concept of Parent Samvad or the Parents Outreach Program, wherein the willing and active parents were nominated as school mitras. So let us hope, ladies and gentlemen, that with this initiative, we will give our children a new way forward and help them in their emotional and learning growth. Without much ado, may I now have the honor to request our very inspiring, dynamic and motivating worthy Principal Secretary Education, Shri H. Rajesh Sharma sir, to welcome our esteemed H. Rajesh Prasad, my apologies, to the launch of today's Parent Samvad Parent Outreach Program. सबको बहुत बहुत नमस्कार. मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली विधानसभा के मेंबर
मिस आतिशी जी, शिक्षा निदेशक, डीसीपी सीआर के अध्यक्ष कुंडू साहब, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, एचओएस, टीचर्स और एसएमसी के मेंबर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन हम और एक नया प्रोग्राम, नया मिशन लेके आए हैं। आप सब लोग वाकिफ हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन के अनुसार दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में अनेक नेक एवं क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उसी दिशा में आज और एक नेक और महत्व का कदम उठाने की ये प्रक्रिया यहाँ जारी है। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ये ऐसे नेक कार्यक्रम दिल्ली में लागू हो रहे हैं। जैसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने लागू किया था देशभक्ति पाठ्यक्रम, उससे पहले यहाँ इसी जगह बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उससे भी पहले आप सब लोग वाकिफ हैं हैप्पीनेस करिकुलम और मिशन बुनियाद, मिशन चुनौती, स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अनेक प्रगति पर और क्रांतिकारी स्टेप्स दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में उठाए गए। इसी दिशा में एक अहम कदम ये है, आप सब लोग इसके इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हो, सारे आप प्रिंसिपल्स, एसएमसी मेंबर्स ऑलरेडी इस दिशा में काम कर चुके हों। जब जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जहाँ हमारे बच्चे हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को एजुकेशन के बारे में, बच्चों को एजुकेशन को कैसे उनको समझाना है, उनको कैसे गाइडेंस देनी है और स्कूल के साथ और टीचर के साथ कैसे संवाद को रखना है। हमारे पास ऑलरेडी सभी स्कूलों में है एसएमसीज, उसमें 16 मेंबर्स हैं। उन्होंने ऑलरेडी जिम्मा लेके रखा है 50-50 पेरेंट के साथ संवाद करने का, मगर ये काफ़ी नहीं है। स्कूल में कभी किसी स्कूल में हजारों, 2,500 से लेकर 4,000, 6,000 तक भी हमारे बच्चे हैं। तो ये कार्य पूर्ण तब हो सकता है जब पेरेंट्स जो है, जिन्होंने अच्छे पढ़े लिखे सेवा मनोभाव के जो पेरेंट्स हैं, उनको जब हम इस कार्य में जुड़ेंगे, यही है इस कार्यक्रम का मकसद है। जो समर्पण मनोभाव के, सेवा मनोभाव के जो पेरेंट्स, अभिभावक हैं, जब वो जो लेसर एजुकेटेड, लेसर नॉलेजेबल जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ संवाद करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, बच्चों की जो एजुकेशनल अन्य प्रगति की कैसे उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनके सही दिशा देके एक सही एजुकेटेड नागरिक को तैयार करने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। तो उसी मकसद के साथ हमारे सारे प्रिंसिपल लोगों ने, सारे एचओएस लोगों ने, एसएमसी के मेंबर्स लोगों ने, टीचर्स लोगों ने तकरीबन 35,000 जो पेरेंट्स के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको हम बहुत सम्मान के साथ स्कूल मित्र का दर्जा दिया है। तो उनको आइडेंटिफाई करके
उस दिशा में ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उस दिशा में ट्रेनिंग, एसएमसी मेंबर्स को, नोडल ऑफिसर्स को, टीचर्स को, एचओएस को, अनेक जो उस कार्य में जो लिप्त है उनकी जो ट्रेनिंग हो चुकी है। आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम को दिल्ली में एक साथ इस दिवाली की पावन अवसर पर इसको लॉन्च करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से यही विनती करना चाहता हूं, ये दिवाली का पावन अवसर है, ये हमारे 35,000 से ज़्यादा जो स्कूल मित्र हैं, उसके साथ हमारे सारे 1200 के करीब जो HOSs हैं, उसके साथ वाइस प्रिंसिपल्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, सारे टीचर्स हैं। आप सब लोग ये स्कूल मित्र के नाते, ये स्कूल 35,000 स्कूल मित्र और उसके साथ आप सब लोग टीचर्स, HOS, सारे लोग, मैं मानता हूं आप इस पेरेंट्स के घर में, इस बच्चों के घर में दिवाली के पावन अवसर पर दिया लेके जा रहे हो, हर घर में दिया जला रहे हो। आप सब लोगों को इस मिशन में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और दिवाली की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने अपने स्वागत भाषण में जो कहा, हम टीम एजुकेशन के लोग उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। और अब ये कार्यक्रम स्कूलों में पायलट किया गया और उस पायलटिंग के दौरान इस कार्यक्रम ने किस प्रकार गति ली, कैसे ये कार्यक्रम चला, हमारे शिक्षकों ने, हमारे अभिभावकों ने इस कार्यक्रम में किस प्रकार अपनी भूमिका अच्छी प्रकार निभाई है, इस बात को बताने के लिए मैं अब तक इस कार्यक्रम की चली हुई यात्रा का एक विवरण देने के लिए आदरणीय श्री CS वर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो विद्यालय प्रमुख हैं सर्वोदय विद्यालय चिराग एन्क्लेव से। और इसी के साथ हमारे टीम एजुकेशन में लगातार बहुत अच्छे से काम करने वाली हमारी दिल्ली विधानसभा की विधायक मैडम भी उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें और मैडम से अनुरोध के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मेरा अनुरोध, हमारी टीम एजुकेशन में लगातार सक्रिय तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले श्री शैलेंद्र शर्मा सर, जो प्रिंसिपल एडवाइजर टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी मंच पर हम स्वागत करें। तालियां जोरदार हों। और अब आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की अब तक की यात्रा श्री CS वर्मा जी की जुबानी। जी धन्यवाद। Respected Honorable Deputy CM Sir, respected Honorable MLA Kalka ji, Achi Ma'am, respected Chairperson DCPCR, respected our Principal Advisor Education, and respected Principal Secretary Education, and respected our Director Education Sir, all officers of DOE, my fellow friends, principals, vice principals, teachers and all SMC members, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे नमस्कार का जवाब मैं सोच रहा हूँ आ जाना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। हम सब एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसके बारे में हम जाने और उसकी जर्नी कहाँ से शुरू उसके बारे में जाने। बट बिफोर स्टार्टिंग माई दिस प्रेजेंटेशन फॉर्मली, I request my technical team to start a video of our visionary Deputy CM Sir. Please, sir. गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले 7 साल में जो सुधार हुए हैं, जो चेंजेस आए हैं, उसकी चर्चा सारी दुनिया में होती है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे स्कूलों में बनी स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज यानी SMCs का भी रहा है। SMCs में कुछ चुने हुए पेरेंट्स होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए सोशल वर्कर्स होते हैं। इन सब ने मिलकर स्कूल में साफ सफाई का ध्यान रखना, उसके बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना, मिड डे मील का ध्यान रखना, बच्चों की एब्सेंटिज्म का ध्यान रखना, इन सब पे बहुत काम किया और उसने कुल मिला के एजुकेशन रिफॉर्म को सक्सेसफुल बनाया। कोरोना के समय जब स्कूल बंद हो गए तो बच्चों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का संपर्क आपस में कट गया। भले ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन संपर्क बहुत टूट गया था। ऐसे में हमारे SMCs ने एक नई मुहिम शुरू की, पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम। कुछ सरकारी स्कूलों की SMCs ने यह अभियान शुरू किया और इसमें स्कूल के कुछ और पेरेंट्स को भी जोड़ लिया
और इन सब ने मिलकर स्कूल के एक एक पेरेंट से बात की, उसकी पढ़ाई के बारे में जाना, ऑनलाइन क्लास के बारे में जाना, टीचर्स से हो रहे या ना हो पा रहे संपर्क के बारे में जाना, बच्चों की समस्याओं को समझा, टीचर्स तक पहुंचाया। ये सब किया गया पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम के तहत। हेलो 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 हाँ जी नमस्ते। नमस्कार, मैं ललिता राणा। आप वंश गुप्ता के पापा बोल रहे हैं? जी। आप हर्षित की मदर बोल रहे हैं? हेलो हेलो विजय जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते विजय जी। नमस्कार भारती जी। बच्चे की ऑनलाइन अभी पढ़ाई हो रही है ना? जी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है मैम। मुझे ये जानना था कि आपके घर पे अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है भारती जी, बिल्कुल बढ़िया। हमारे कॉलिंग के माध्यम से पेरेंट्स को ये पता लग रहा है कि हमारे बच्चों को फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे बच्चों के फेवरेट टीचर्स कौन से हैं, इवन उनको क्या करना ज़्यादा पसंद आता है। इसमें हमें बताया गया कि हमें कम से कम 50 अभिभावक के साथ जुड़ना है, उनसे हमें बातचीत करनी है, उनका पेरेंट्सिंग का एक्सपीरियंस लेना है, वो अपने बच्चों से कैसे घुलते मिलते हैं, अपने बच्चों के विषय में क्या जानकारी है। घर में सबके से ठीक है? जी जी मैम, घर में सब लोग ठीक हैं। परिवार की तरह बात करते हैं कि आप कैसे रह रहे हो, ठीक ठाक है। फिर हम बच्चे की पढ़ाई में आते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। आपकी बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मैम। प्यार से समझाती हूँ, बेटा पढ़ाई करो, बाहर नहीं जाना, अभी कोरोना इतना हो रहा है। तो उनकी मम्मी फिर मेरे को वापस फ़ोन करती हैं कि देखो मैं आपका नाम लेती हूँ ना तो ये लोग बाहर नहीं खेलने जाते हैं, जैसे पार्क भी जाते हैं। तो कहते बहुत कहना मानते हैं। मुझे उस पेरेंट्स का 2 दिन फ़ोन लगातार आया, मैडम थैंक्स कि मैडम आपने इतना अच्छा काम किया है कि मेरा दिल आपके लिए धन्यवाद है बहुत हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहा है। बहुत खुश हो जाते हैं कि मतलब ऐसे समय में भी स्कूल के थ्रू आप लोग हमसे जुड़े हैं, हमारा हालचाल ले रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई समस्या तो नहीं हुई है? नहीं, सारे यूटी किए हैं मेरे बच्चे ने, और ओरल भी हुए थे और यूटी भी हुए तो वो भी किए। उनको अगर पढ़ाई में दिक्कत होती है या टीचर्स के साथ तालमेल में कोई परेशानी होती है तो हम उन चीज़ों को टीचर्स और बच्चों के बीच का एक, जिसको कह सकते हैं, सेतु बना रहे हैं कि आपस में हम जुड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। यह सब अनुभव इतना अच्छा रहा है मेरे लिए क्योंकि इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़े। अभी तक एसएमसी स्कूल और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम कर रही थी, बट इस टाइम वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है। कई पेरेंट्स को तो ये तक नहीं पता था कि एसएमसी क्या होती है और एसएमसी बच्चों को कैसे हेल्प करती है। तो पहले तो समझ में नहीं आया क्या है। मेरे पास कॉल आई फर्स्ट टाइम तो आई वाज लाइक कि ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। हमने फिर जाना कि स्कूल में जो जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में एसएमसी के लोग हमें बताने लगे। एक सेटिस्फेक्शन ये लगता है कि हाँ कोई है जो हमारी बात सुन रहा है, कि जिससे जो हमें कॉल कर रहा है, पूछ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी यहाँ से हमें समय समय पर कॉल आता रहता है, मेरे बच्चे बारे में पूछते रहते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। फैमिली तो आपकी है जो आपको बाय बर्थ मिलती है, एक फैमिली होती है कि जो आपको एक बच्चे के थ्रू मुझे मिली है, कि जिसमें मुझे दिख रहा है कि वो लोग मेरे सपोर्ट में हैं, वो लोग मेरी हेल्प के लिए रेडी हैं। अब बच्चे से हम खुल के बात कर पाते हैं, उसके बारे में क्या हॉबी है उसके बच्चे की, क्या खेल कूद में रुचि रखता है। हमसे ज्यादा उनको चिंता है कि हाँ इनका बच्चा कैसे है, कैसे क्या कर रहा है, तो हमें भी उससे पता लगा भाई देखो हमें भी इतनी चिंता होनी चाहिए जितनी इनको है। तो देखा आपने, एक एक पेरेंट का ये सोचना कि ये जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है इसकी चिंता जितनी हम पेरेंट्स को है उतनी ही स्कूल को भी है, उतनी ही स्कूल के और पेरेंट्स, एसएमसी मेंबर्स, समाज के सब लोगों को है। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये कॉन्फिडेंस दिल्ली के हर उस व्यक्ति में होना चाहिए जिसका बच्चा हमारे साथ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आइए मिलके इस मुहिम को सफल बनाते हैं। ये जो कार्यक्रम कुछ स्कूलों में चला, अब दिल्ली के एक एक स्कूल में इस कार्यक्रम को चलाते हैं। दिल्ली के हर स्कूल में स्कूल मित्र बनाते हैं और दिल्ली के हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स के साथ संपर्क करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपकी ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा समय चाहिए। आप अगर जुड़ गए तो दिल्ली के एजुकेशन ऑफिसर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब मिलके इस पूरी मुहिम को न सिर्फ सफल बनाएंगे बल्कि पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को सफल बना सकेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी, कारण ये था कि जैसा हम सबको विदित है कि कोविड-19 के टाइम पे जब स्कूल बंद हो गए थे और बच्चे घर पर थे, पेरेंट्स घर पर थे, तो कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस प्रोग्राम को जो है कुछ ऐसा शुरू किया जाए ताकि
स्कूल जो है वो घर तक पहुंच सके, टीचर्स का, एसएमसी मेंबर्स का कम्युनिकेशन जो है वो स्कूल तक, घर तक पहुंच सके, और उसकी ज़रूरत तब पड़ी और एक प्रोग्राम निकल करके आया जिसका नाम था पेरेंट आउटरीच। उस टाइम लास्ट ईयर 2020 में सितंबर महीने के बाद में। प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम क्या है कि इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्कूल के सभी पेरेंट्स तक पहुंचना, कैसे पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को स्कूल से जोड़कर उनके साथ बच्चों की शिक्षा व परवरिश की बात की जाए, सक्रिय पेरेंट्स को स्कूल मित्र बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचा जाए और पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ संवाद बनाने में सहयोग किया जाए। कई बार पेरेंट घर पे भी बैठे होते हैं, बच्चा बैठा होता है, टीवी चल रहा होता है, उनको मालूम नहीं होता है कि करना क्या है, बच्चे के साथ बात क्या करनी है। जैसे कि ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन सर ने कहा कि हमारे स्कूल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, उनको मालूम नहीं है पेरेंट्स को कि बच्चे से बात क्या करनी है। तो कम्युनिकेशन एक बच्चे के साथ, उसके पेरेंट के साथ, स्कूल का, एसएमसी का, सबका मिलकर के हो सके, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी। इसके साथ साथ इसकी जरूरत इसीलिए भी पड़ी कि नेक्स्ट स्लाइड जो है, कि हमारे पास में लगभग हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 18 लाख बच्चों पे 14,000 एसएमसी मेंबर्स हैं और लगभग 22,000 लोगों की और ज़रूरत थी जो कि एसएमसी और पेरेंट्स के बीच के गैप को कम कर सकें, उसको फिल कर सकें। तो 22,000 स्कूल मित्र बनाए गए और इस प्रोग्राम की शुरुआत पायलटिंग में डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के टोटल 40 स्कूलों के साथ में की गई। कुल पेरेंट्स इन स्कूलों के अंदर 61,000 थे, एसएमसी मेंबर 560 और 40 स्कूल के एचओएस और एसएमसी मेंबर्स को स्टार्टिंग से ही एक ट्रेनिंग दे करके और लगभग 29,000 पेरेंट्स तक पहुंचा गया। हर एक पायलट प्रोग्राम की कोई ना कोई लर्निंग होती है, सीख होती है। तो इससे सबसे बड़ी एक लर्निंग ये मिली कि जितने हमारे एसएमसी मेंबर्स थे, स्कूल मित्र थे, उनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि पेरेंट्स को कॉल करने के लिए फाइनेंशियल इश्यूज बने कि मोबाइल चार्ज और वो सब। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक टोल फ्री नंबर दे दिया जा रहा है अब हमको, और हम जो है सभी पेरेंट्स अपने स्कूल मित्र जो हैं पेरेंट्स से निशुल्क बात कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास में है। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के से लर्निंग कुछ और थी कि आसानी से स्कूल की जानकारियां पेरेंट्स तक पहुंचने लगी, बच्चों तक पहुंचने लगी। पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा में सहभागिता बढ़ी और साथ साथ हर इस पहल से स्कूल हर लोकेलिटी तक जहां जहां उसके बच्चे पढ़ रहे थे वहां तक पहुंचा। नो डाउट हर एक प्रोग्राम की कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं। ये जो लिस्ट है साथियों वो बहुत छोटी है। जब मैंने 40 हमारे पायलटिंग जहां जहां हुई एचओएस से बात करी तो एक बड़ी लंबी सी लिस्ट निकल के आई। उसमें से एक क्रिस्प मैंने निकालने की कोशिश की है ताकि हम सब की जर्नी, उन 40 पायलट स्कूल्स की जर्नी आप तक पहुंच सके। पहला था कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, एब्सेंट थे या कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कुछ बच्चों ने नाम भी कट गए थे, तो ऐसे बच्चों का दोबारा नाम लिखवाया गया। स्कूल मित्र ने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि उनके बच्चे का नाम कट गया है और स्कूल में जाकर के उनका दोबारा नाम लिखवाया गया। साथ साथ एक ऐसा वक्त पेंडेमिक का, कोविड-19 का, जब बड़ी नेगेटिविटी छाई हुई थी, कहीं किसी तरफ से कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। कभी बहुत सारे नंबर ऑफ डेथ केसेस आ रहे थे। एक बहुत भयावह वक्त हमारा गुजरा है, हम सब का, पूरे संसार का एक भयावह वक्त गुजरा है। ऐसे में एक ब्यूटी इस प्रोग्राम की और निकल के आई, वो ये थी कि जब स्कूल मित्र ने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना शुरू किया तो आदमी का आदमी से कम्युनिकेशन हुआ। एक दूसरे से कम्युनिकेशन से एक ढाढ़स बढ़ता है, आशा जगती है और पॉजिटिविटी का संचार होता है। वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा।
इसके साथ साथ ही कुछ पेरेंट्स ने, कुछ स्कूल्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और साथ साथ टीचर्स के साथ मिलकर के ग्रुप्स बनाए। और जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बने तो बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस देने शुरू किए और सजेशंस के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी शुरू की और वो आपस में शॉर्ट आउट होती गई। जो बच्चे फीडर स्कूल से हमारे स्कूल्स में आए तो ऐसे बच्चे स्कूल में नहीं आ पाए और चूंकि ये बच्चे टीचर्स से, क्लास टीचर्स से मिल नहीं पाए थे तो उनसे कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा था। जब स्कूल मित्र को हमारे टीचर्स ने कहा कि भाई इन बच्चों से अगर हो सके तो हमारी बात करवा दीजिए, स्कूल मित्र ने लोकेलिटी में, पास पड़ोस में वहाँ पे रह रहे थे ये बच्चे और स्कूल तक उनको कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन पहुँचाया। इसके साथ ही माता पिता को बच्चों की ऑनलाइन क्लास के बारे में, वर्कशीट के बारे में बहुत इन हैंड इंफॉर्मेशन मिली। जब ये बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज इसके साथ में है और भी बहुत सारी हैं जो मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है तो और भी बहुत सारी हैं। अब जब इतना ब्यूटीफुल, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ ही, वो ये कि ये इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम है जिसमें कि हर बच्चा, उसका पेरेंट स्कूल मित्र से जुड़कर, स्कूल प्रशासन से जुड़कर और स्कूल प्रशासन सारे हायर ऑफिसर से मिलकर और अपनी बात को हमारे रेस्पेक्टेड डी सर, डायरेक्टर एजुकेशन सर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन सर से होते हुए वो सारी की सारी बातें हमारे शीर्ष के जो लीडरशिप है, हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर तक है, वहां तक ये पहुंचाई जा सकती हैं। स्कूल एक परिवार की तरह जुड़ सकता है इस प्रोग्राम से, एक यूनिट की तरह जुड़ सकता है और आपसी कम्युनिकेशन बन सकता है इस प्रोग्राम से। तो ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्यूटी जो मुझे लगी। साथ साथ इसके अब जब इतना अच्छा प्रोग्राम है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट नेक्स्ट। इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग्स हमारी जो है वो शुरू होंगी। पहला चरण जो है उसका बच्चों की पेरेंटिंग, पढ़ाई और मंथली थीम के आधार पर इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स कराना होगा। एसएमसी मेंबर व स्कूल सेकंड जो चरण है वो होगा, एसएमसी मेंबर व स्कूल मित्रों की टोल फ्री कॉलिंग सिस्टम पे ट्रेनिंग कराई जाएगी। तीसरे चरण में हर महीने पर पेरेंटिंग थीम के आधार पर ट्रेनिंग होगी और चौथे चरण में हर महीने की कॉल सुनिश्चित करवाना होगा। ये इस प्रोग्राम की पूरी एक जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं इस मौके पे थोड़ा सा सर से वक्त लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से कि जो हमारे पास में टोल फ्री नंबर्स की जो ट्रेनिंग है उसका एक वीडियो यहीं पे प्रस्तुत किया जाए, प्लीज। नमस्ते, दिल्ली सरकार की स्कूल मित्र हॉटलाइन सेवा में आपका स्वागत है। आपकी कॉल आपके स्कूल मित्र से कनेक्ट की जा रही है। एसएमसी मेंबर्स और स्कूल मित्र अपने रजिस्टर्ड नंबर जो स्कूल में दिया गया है से एक टोल फ्री नंबर 0806-9666-666 पर कॉल करेंगे तो कंप्यूटर उनसे पूछेगा कि आपको जिस अभिभावक से बात करनी है उसका सीरियल नंबर स्कूल द्वारा दी गई लिस्ट के मुताबिक डायल कीजिए। जैसे ही सीरियल नंबर डायल किया जाएगा, कॉल ऑटोमेटिक उनके सीरियल नंबर वाले अभिभावक को लग जाएगा और बातचीत शुरू हो पाएगी। अगर सीरियल नंबर डायल करने के बाद नंबर बिजी या स्विच ऑफ या आउट ऑफ नेटवर्क है तो कंप्यूटर दूसरा सीरियल नंबर डायल करने के लिए कहेगा। पिछले 6 सालों से एसएमसी ने स्कूल के अंदर बेहतरीन काम किया और अब वक्त आ गया है कि स्कूल एसएमसी के माध्यम से सभी अभिभावकों से जुड़े। दिल्ली बाल अधिकार आयोग ने एक फ्री कॉलिंग सिस्टम बना दिया है जिससे अगर कोई बच्चों की भलाई के लिए काम करना चाहे तो फाइनेंशियल रीजंस बीच में ना आए। एसएमसी और स्कूल मित्र महीने में एक बार अपने निर्धारित अभिभावकों से कभी फोन के माध्यम से,
कभी घर जाकर मिल रहे होंगे और बच्चों की भलाई के लिए अभिभावकों को जागरूक करेंगे। अभिभावक ये टोल फ्री नंबर अपने मोबाइल में स्कूल के नाम से सेव कर लें और जब भी कोई अभिभावक अपने रजिस्टर्ड नंबर जो स्कूल में दिया गया है से कॉल करेंगे तो उनका कॉल डायरेक्ट उनके एसएमसी मेंबर या स्कूल मित्र से लग जाएगा। आपकी कॉल आपके स्कूल मित्र से कनेक्ट की जा रही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से अभिभावक स्कूल से जुड़ सकेंगे और घर पर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जागरूक बनेंगे। धन्यवाद टेक्निकल टीम। जैसा कि इस वीडियोस को देखने के बाद एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम के द्वारा हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो स्कूल के साथ में बहुत अच्छे से बढ़ पाएगा और हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छे से अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CS वर्मा सर ने अब तक की यात्रा के विषय में बताया और किस तरह इस कार्यक्रम को हमने पायलट किया है वो सारी जानकारी यहाँ दी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अपना एक निज मत है कि अगर किसी बच्चे को आप उपलब्धियों से नवाजना चाहते हैं तो उसके माता पिता और अध्यापक को साथ कर दीजिए, उन्हें एक टीम में लेकर आ जाइए और अगर वो टीम बन गई तो समझिए बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का इस मत के लिए आभार व्यक्त करें। और अब मेरा अनुरोध श्री अनुराग कुंडू सर से जो DCPCR के चेयरमैन हैं वो एक पैनल डिस्कशन यहाँ करेंगे। मेरा अनुरोध डॉक्टर गोपाल कृष्ण जो विद्यालय प्रमुख हैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालकाजी नंबर 2, जोरदार तालियों से, चूंकि इन लोगों ने पहले इस प्रोग्राम को अपने विद्यालयों में किया है, इनका स्वागत करते रहें। मैडम विभा वैद जो SKV नंबर 2 मंडावली से हैं आए। ये पैनल डिस्कशन में अपने अपने विद्यालयों में जो बातें हुई हैं उनके विषय में हम सबको विस्तार से बताएंगे। मिसेस फ्रैंकलिना जो NE बेसेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय फेज 2 पॉकेट 2 मयूर विहार से हैं। एक बार जोरदार तालियों से, आप SMC मेंबर हैं। साथ ही मिस तान्या सिंह राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय वेस्ट विनोद नगर से हैं, पेरेंट मेंबर हैं। जोरदार तालियां बजती रहें हमारे इन साथियों के लिए। और स्कूल मित्र के तौर पर उपस्थित हो रहे हैं श्री नदीम मुस्सहर, आप कालकाजी नंबर 2 से हैं। मैडम नदीम मुस्सहर हमारे साथ, जोरदार तालियों से आप इनका भी अभिनंदन। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय अनुराग कुंडू सर से कि इस पैनल डिस्कशन को प्रारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे इस पैनल का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के साथ पूरा पैनल। और अब मेरा अनुरोध DCPCR के चेयरमैन सर से कि वो इस पैनल डिस्कशन को प्रारंभ करें। नमस्कार सभी को। आपने बहुत अच्छा वीडियो देखा और CS वर्मा जी की प्रेजेंटेशन देखी कि प्रोजेक्ट क्या है। तो एक बार जो हमने पायलट जिसका जिक्र किया प्रेजेंटेशन में CS वर्मा जी ने, एक बार अब समझते हैं कि पायलट कैसा गया और उन्हीं की ज़ुबानी समझते हैं जिन्होंने पायलट में हिस्सा लिया। तो देखते हैं हमने क्या सीखा, क्या हमारे स्ट्रगल्स रहे, ये प्रोजेक्ट जो किया उससे कुछ फ़ायदा हुआ। तो प्रिंसिपल सर डॉक्टर गोपाल, चूँकि आप प्रिंसिपल रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स में वो प्रिंसिपल है। यस, तो मेरा सवाल बहुत ही सरल है आपसे। कोविड टाइम्स रहे हैं, पैंडेमिक, स्कूल्स बंद हैं पिछले 1.5 साल से लगभग। आपने पेरेंट्स से कांटेक्ट एस्टैब्लिश कैसे किया ड्यूरिंग कोविड? A very good morning to all and very privileged to be here. So मेरा स्कूल उन 16 स्कूल्स में है जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट के थे और जहाँ पर के पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और कोविड के पीरियड में जो बिगेस्ट चैलेंज था, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो ये थी कि
to establish connectivity with the students and parents, physical connectivity as well as mental and emotional connectivity. तो इस कार्य में जो हमारे एसएमसी टीम और स्कूल मित्र उन्होंने जो भूमिका निभाई, they truly acted as a bridge, as a सेतु between the school administration and the parents. तो ये बहुत ही अच्छी रही। जैसा कि अभी जिक्र भी हुआ है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो थी इफेक्टिव उस लर्निंग के लिए ये ज़रूरी था कि अच्छी कनेक्टिविटी हो। तो उसमें हमारे जो स्कूल मित्र हैं, दे वेंट आउट ऑफ द वे, दे वेंट द एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने, क्योंकि इस सिस्टम में ये था कि जो स्कूल मित्र थे वो लोकेलिटी वाइज बनाए गए थे, एरिया वाइज, तो वो they made an effort to reach out to each and every student of the school. तो ये इसका एक मैंने फीचर महसूस किया कि इसमें हमने कोशिश की सभी एक एज ए टीम कि एक एक बच्चे तक पहुंचा जाए, तभी इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। बहुत न्यूमरस इंसिडेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि उन्होंने जैसे कहीं पर कोई एड्रेस नहीं मिल रहा है, एक ही नंबर के एड्रेस हैं, एक ही बिल्डिंग में, प्राइवेट बिल्डिंग में जैसे कई रेजिडेंशियल एकोमोडेशन होती हैं, तो वो सारी चीज़ें साझा करते थे कि किस तरह से फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए भी उन्होंने कोशिशें की। कुछ बच्चे इस पीरियड में डिस्ट्रेस सिचुएशन में थे, उनके पेरेंट्स ने भी कई बार उनको काम पे लगा दिया, या कहीं एक बच्चे का केस था कि वो खुद ही काम पर लग गया, उसको लगा कि मैं अभी अर्न कर सकता हूँ, लेकिन हमारे स्कूल मित्रों ने उनकी काउंसलिंग की कि अभी बच्चों आपका पढ़ने का समय है। तो थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल मित्रास ने या आपके एसएमसी मेंबर्स ने ना सिर्फ बच्चों को फिजिकली ट्रेस किया जिनसे आप संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे जी सर, उनको ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट कराया, और जो डिस्ट्रेस में थे जी उनकी मदद भी की जी। मैम, आपका भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है? सर, लास्ट ईयर जो सबसे बड़ी चैलेंज थी, हमारे यहाँ बच्चों के लिए 1st to 8 टेक्स्ट बुक्स आती हैं। अब बच्चे सारे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चों तक बुक्स पहुँचाई कैसे जाएं, जो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट बच्चों को किताबें तो मिलनी थी, तो हमने फिर कुछ एक्टिव पेरेंट्स, हमारा मतलब एक्टिव पेरेंट्स ही जो स्कूल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने बच्चों की प्रोग्रेस को भी जानते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स से हमने कनेक्ट थोड़ा बनाया, वो अपने आप अप्रोच किया। हमारे टीचर्स और हमारे एसएमसी ने इसमें काफ़ी मदद की, तो उन पेरेंट्स के थ्रू हमारा काम इतना आसान हो गया, विदिन ए वीक हमने सभी बच्चों को किताबें दे दी। अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़े चेंज हुए हैं 10th और 12th में, ये भी सब तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी जानकारी भी बच्चों को इन्हीं ये हमारी स्कूल जो हमारे जो एक्टिव पेरेंट्स थे उनके थ्रू, एसएमसी मेंबर्स, हमारी टीचर्स, सब तक ये समय पे पहुंचा। तो किताबें बंटवाने से लेके एग्जामिनेशन पैटर्न समझाने तक का जो संवाद है। मैडम, आपका खुद का बच्चा दिल्ली सरकार के विद्यालय में पढ़ता है और आप वो पेरेंट हैं जिसने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, आपको कुछ फ़ायदा नज़र आया प्रोग्राम से? जी सर, बिल्कुल नज़र आया है। सबसे ज़्यादा सर मुझे तब हुआ था रियलाइज, मतलब कि जब एडमिशन करवाना था, एडमिशन के टाइम पे मुझे मेरे बेटे का एडमिशन था, तो मुझे नहीं मालूम था क्या प्रोसीजर है, कैसे एडमिशन करा जाएगा, सारी चीज़ें कैसे होंगी। सो वहाँ पे एसएमसी के मेंबर्स मालूम भी नहीं था, तो उन्होंने मेरे को इसमें एडमिशन में मेरे बहुत हेल्प आउट करा, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। पूरा प्रोसीजर एडमिशन का समझाना, फॉर्म कैसे फिलअप होना है, सब चीज़ें, इनफैक्ट एवरीथिंग आई से उन्होंने बहुत हेल्प करा मुझे इस चीज़ के लिए, जिसके लिए आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया। एंड मेरे को इससे ये भी हुआ कि मुझे अब इन्फॉर्मेशन भी, जो स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो भी मिलेगी अब एसएमसी मेंबर से। मैडम, आप मित्र रही हैं, एसएमसी मित्र, और मैडम एसएमसी मेंबर रही हैं, क्यों बनी आप एसएमसी मित्र? One morning I got a call from my son's school and SMC member was on call and she said कि मैम, मैं आपके बेटे के स्कूल से SMC मेंबर हूँ और मैंने कॉल किया आपके बच्चे का प्रोग्रेस पूछने के लिए कि वो पढ़ाई में कैसा कर रहा है बच्चा, या अदर वेलबींग, कि सब कुछ ठीक है फैमिली में। तो देन आई सेड ओके, आई वाज वेरी सरप्राइज, हैप्पीली सरप्राइज कि ऐसा एक कॉल मेरे पास आया है स्कूल से। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे स्कूल मित्र के बारे में बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया कि मैम हम आपको चाहते हैं, क्योंकि आप एक्टिव पेरेंट हो, तो ये हमारा एक पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ही आता है कि हम चाहते हैं कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें बच्चों के साथ, कि वो बच्चों की पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट दिखाएं और इन्वॉल्व हों।
तो जैसे अभी आपको मैंने कॉल किया है, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अदर पेरेंट्स को कॉल करें, उनसे पूछें और बच्चों की प्रॉब्लम पूछने का आप कोशिश करें कि बच्चा पढ़ाई ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत न्यू पैटर्न था सबके लिए। तो क्या डिफ़िकल्टी पेरेंट को आ रही है या क्या बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए एक सवाल मैं भी पूछना चाहूँगी उनसे। देखिए, हम जैसे अक्सर सोचते हैं ना कि पेरेंट्स बहुत बिजी हैं, वैसे भी घर भी चलाना है, बच्चों की परवरिश भी करनी है। अब ये सवाल आ गया है कि स्कूल आपको कह रहा है कि जी अब आप कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व होइए, तो आपको क्या लगता है कि एज अ स्कूल मित्र, एज अ पेरेंट, आपके लिए कैसा रहा है एक्सपीरियंस? मतलब एट अ फर्स्ट ग्लांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगा कि अब ये अनवांटेड सा बर्डन सा मेरे ऊपर ना हो जाए, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे बोला कि एटलीस्ट 50 पेरेंट्स होंगे जिनको मुझे कॉल करनी होगी। बट एकदम से माइंड में आया कि नहीं, मैं तो हमेशा से रहा कि पैशनेट हूँ कि हेल्प करनी है, और अगर एजुकेशन फील्ड में किसी को हेल्प करने का अगर चांस मिलता है तो उससे अच्छा तो आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। तो उस माइंड से आई थॉट कि नहीं, अब तो मुझे ये करना है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को एंगेज करने की ज़रूरत क्यों है? पढ़ाना लिखाना तो टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, स्कूल का काम है, तो पेरेंट्स को एंगेज क्यों करें इन द फर्स्ट प्लेस? पेरेंट्स को एंगेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप टीचर्स से पूछिए, टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, किसी बच्चे को कुछ समझाना चाहते हैं, किसी बच्चे को चाहते हैं कि वो बच्चा, मतलब पढ़ाई केवल ऐसा तो है नहीं कि 6 घंटे बच्चे को स्कूल में भेजा और उतने भर से हो जाएगी। बच्चा घर से भी बहुत कुछ सीख रहा है, बच्चा आसपास से भी बहुत कुछ सीख रहा है, प्लस होमवर्क है, प्लस स्टडीज़ हैं, और अब तो ट्यूशन और तमाम चीज़ें भी होती हैं, कोचिंग्स होती हैं कंपटीशन की। तो उन सब के बीच पेरेंट कहाँ खड़ा है? पेरेंट की सोच क्या है? अगर पेरेंट की सोच और टीचर की सोच एक रास्ते पे नहीं हुई तो पेरेंट बच्चे को इधर ले जाना चाहते हैं, टीचर देख रहा है बच्चे का टैलेंट इधर जा रहा है, बच्चा कुछ और सोच रहा है, तो उसकी बच्चे की स्थिति ऐसी हो गई है बेचारे की जिसके दोनों तरफ 2 बैल बांध दिए गए हैं, एक तरफ खींच रहा है, एक तरफ खींच रहा है। दोनों टीचर और पेरेंट मिलके उस बच्चे की गाड़ी को एक तरफ खींचेंगे तो बच्चा चल पड़ेगा, और अगर दोनों एक बैल इस तरफ खींचेगा और एक बैल इस तरफ खींचेगा तो उसके बाद बच्चे का क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट और टीचर मिलके एक दिशा में बच्चे को चलाएं। वो दिशा क्या हो, वो किसी सर्कुलर से नहीं हो सकती है, वो पेरेंट्स के आपस के संवाद से, और जो मैडम ने जो काम किया, इन्होंने प्रिंसिपल्स ने जो उसको लीड लिया, और हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से आगे बढ़ के दूसरे पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि प्रिंसिपल को पता है कि क्या आइडिया पेरेंट्स के साथ डिस्कस होना है। अब एक स्कूल में 50-60 पेरेंट हो तो कोई भी टीचर डिस्कस कर लेगा, लेकिन 3000-4000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 20, 25, 30, 40 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल्स हैं। इनके सामने समस्या ये है कि उस बच्चे को पढ़ाएं 6 घंटे बैठ के, फिर उसके और कंपटीशन की तैयारी कराएं, या एक पेरेंट से हर महीने बात करें तो इसलिए इसका विस्तार दिया, और आज इसका विस्तार इतना शानदार हो रहा है। आई एम अमेज्ड टू सी दिस, वंडरफुल। तो सर ने बात कही कि किस प्रकार से पेरेंट और स्कूल की एनर्जी साथ मिलकर बच्चे को फ़ायदा। आपका सिमिलर एक्सपीरियंस, आप प्रोग्राम आपने करीब साल भर इम्प्लीमेंट किया अपने स्कूलों में, तो आपको लगा कुछ फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम से, और क्या अगर आप 1-2 वाक्य से बताएं? जी, जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगा एज एन HOS की, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा या मेरी फीलिंग रही कि नाउ द स्टूडेंट हैज़ started developing a sense of belonging to the school. पेरेंट्स, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अब वो उनको लगता है कि हमारा स्कूल है। नाउ दे आर प्राउड ऑफ देयर स्कूल, क्योंकि बच्चों को डील करने में जो एक सेंसिटिविटी की ज़रूरत है वो आ रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जब दूसरे पेरेंट्स भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो वो भी कई, मेनली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो प्रोग्राम है इट इज़ बेस्ड ऑन पेरेंटिंग, और वो इट टेक्स द पेरेंटिंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसमें क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, many of our students are they come from underprivileged section of the society, they are first generation learners, so for moving forward they need constant support, guidance and caring attitude from their parents, from their teachers. So एक बॉन्डिंग है जो बच्चे और पिता का, वो इससे मजबूत होता है।
तो वो चीज़ वो उसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चे को आगे ले जाने के लिए। इवन जो पेरेंट्स सेमी लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, वो भी बच्चों को एक सुपरविजन के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने ये फील किया है कि अब बच्चों की एनर्जी चैनलाइज हो रही है अच्छे कार्यों के लिए, उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है। करेक्ट, आपने कहा पेरेंटिंग पे है। मैडम, आपके 2 रोल हैं, आप एसएमसी मेंबर भी हैं और एक पेरेंट भी हैं साथ साथ में, तो किस प्रकार से पेरेंट की मदद होती है इस प्रोग्राम से? सभी को नमस्कार सर। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, इसीलिए क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को उनके माँ बाप से जोड़ना है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन थी कोविड के समय में, सबको कमाने की सबसे ज़्यादा चिंता थी, तो इसमें वो बच्चे की पढ़ाई को लेके कैसे कर रहे हैं। तो इसमें हमारे साथी हम सब लोग HOS के साथ मिलके जो हमें रजिस्टर दिए हैं कॉल करने के लिए, कॉल करके पहले हम उनसे बात करते हैं और उसके बाद में हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर वो बच्चों के साथ जुड़ेंगे तभी वो स्कूल की तरफ आ पाएंगे, तो बच्चों का स्कूल से तभी जुड़ाव हो पाएगा। तो हमें पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करना है कि आपके बच्चे के लिए सही काम हो रहा है, आप इस काम को देखिए, एक बार आइए अपने बच्चे के लिए स्कूल में आके बात करिए, स्कूल में आके देखिए क्या पढ़ रहा है। वो कहते हैं हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हम तो पढ़े ही नहीं हैं, कभी हमें क्या पता होगा पढ़ाई के बारे में। तो हम कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी खोल रहा है, बंद कर रहा है, उसमें कुछ लिख रहा है या उसको ऐसे ही हटा देता है या उसको छूता भी नहीं है, आप इस चीज़ को देखिए। तो समय नहीं है हमारे पास, हम कमाने जाएंगे कि बच्चों को देखने के लिए जाएंगे, तो समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात को तो आते हैं, 5 मिनट आप दो में से एक दिन बैठेगा बच्चा, अपने आप ही आपके साथ हो जाएगा। जब आपके साथ हो जाएगा तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया मैडम ने कि किस प्रकार से कम पढ़ा लिखा पेरेंट भी बच्चे के साथ एंगेज करके उसकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ा सकता है। मैडम, आप टीचर कन्वीनर रही हैं, तो इस प्रकार के एसएमसी मेंबर्स और एसएमसी मित्र ढूंढना, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो कैसे आपने इसको ओवरकम किया? स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को समझाने में दिक्कत रही। कुछ पेरेंट्स तो विलिंगली तैयार भी हो गए थे कि हाँ, हमें स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा कि हम स्कूल की हेल्प कर पाएँ, विद्यालय और अभिभावकों के बीच में संवाद की एक कड़ी बन पाएँ। पर जितने हमें आवश्यकता थी स्कूल मित्र की, उतने एट ए टाइम हमें नहीं मिल पाए, तो हमने अपने एसएमसी मेंबर का सहयोग लिया, हमने एक नोडल पर्सन बनाया, उनका सहयोग लिया। हमारे यहाँ जो एसएमसी कोऑर्डिनेटर थे, MLA रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके माध्यम से हमने काफ़ी पेरेंट्स से संपर्क करके उन्हें समझाया, इस प्रोग्राम का फ़ायदा बताया कि उनको इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने से अपने बच्चे की पेरेंटिंग में भी क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह अब हमारे पास जितने चाहिए उतने स्कूल मित्र तैयार हैं। हमारे स्कूल में अभी 37 स्कूल मित्र हैं। शैलेंद्र जी, 40 स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना बहुत छोटा स्केल है, रिलेटिवली बहुत ईजियर है, बिकॉज आप प्रैक्टिकली माइक्रो मैनेज कर सकते हैं। ये 1000 स्कूल में कैसे करने वाले हैं? हो ही रहा है। अब आप देखिए, इतने सारे एसएमसी मेंबर्स मिल करके, अभी नंबर आपने देखा जो CS वर्मा जी ने बताया है कि इतने सारे लोग आगे आए और आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग जुड़ना चाहते हैं इस पूरी मुहिम से, कि सबका बच्चा है और अपना डायरेक्ट स्टेक है इसमें। तो आप कोई अलग से कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, आप बच्चे के साथ अपने इन्वॉल्व होते हैं, वही एक्सपीरियंस को आपको दूसरे और पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के कोई बड़ी नई सी चीज़ करनी है। आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आप बच्चे के साथ इंगेज करते हो, वही चीज़ आपको बाकी 50 और पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है, और इससे आपस में एक और बॉन्ड बनेगी। जैसा अभी किसी ने बताया कि हमारा परिवार और बड़ा हो रहा है, तो एक तरीके से आप एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है, और परिवार में एक दूसरे का सपोर्ट तो हम करते ही हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। आतिशी मैम, आप 2015 से एसएमसी को बिल्कुल नए सिरे से स्ट्रक्चर करने से जुड़ी रही। अब एसएमसी मित्र 22,000 हमने CS वर्मा की प्रेजेंटेशन में देखा, इनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? देखिए, जो SMCs हमने बनाई, आप SMCs को देखिए तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में एनविसाज हुई थी,
लेकिन और अभी ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं अपने डायरेक्टर साहब से बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से एसएमसीज दिल्ली में इवॉल्व हुई, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं पे भी इतना बड़ा कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम इतने लंबे समय तक कहीं पे भी चल पाया है। और शुरू में जब हमने एसएमसीज पे काम किया था तो बहुत सारी स्टडीज़ लोग हमारे सामने लेके आते थे कि कम्युनिटी इंगेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन आज जो सारी यहाँ पे गैदरिंग बैठी है, मेरे ख्याल से वी हैव इनफ एम्पल एविडेंस टू शो ऑल ऑफ दो स्टडीज वर्ंट करेक्ट, तो उसके लिए सबको बधाई। आई थिंक ओवर द इयर्स हमारे जो अपने एसएमसी मेंबर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड हुई है, देखिए वो ट्रेनिंग के माध्यम से तो हुई है, वो उनकी एक्टिविटीज़ और उनके एक्शंस के माध्यम से हुई है। तो उनकी कैपेसिटी सिर्फ हमने जो SCRT से भी हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स करी, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करी, लेकिन जब हमारे SMC मेंबर्स फील्ड में उतरे हैं उसी से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। और मुझे ये लगता है कि उसी तरह से अब जैसे हमारे 22,000 स्कूल मित्र बने हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि SCRT ने काफ़ी एक्सटेंसिव उनका प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जैसे एक्सपीरियंसेस अभी मैम ने शेयर करे एज अ स्कूल मित्र एंड एज एन SMC मेंबर, आप इनकी बात सुनिए तो जितनी क्लैरिटी इनको है कि एज एन SMC मेंबर और एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है ये तो खुद ही ट्रेन करने के लिए तैयार हैं अब और पेरेंट्स के लिए जो हमारे यहाँ पे हैं। आई थिंक एक एक्सपीरियंस मैं शैलेंद्र जी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शेयर करने के लिए कि कुछ साल पहले से हमने ये पेरेंट टीचर मीटिंग्स का प्रोसेस शुरू किया। तो हमारा ये जो पेरेंट इंगेजमेंट का काम है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकें, ये अब हम काफ़ी सालों से उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम शुरू में भी पेरेंट टीचर मीटिंग्स में जाते थे तो देन हम ये देखते थे कि एक तरफा संवाद होता था कि टीचर्स पेरेंट्स को बता रहे होते थे कि आपके बच्चे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, लेकिन पेरेंट्स का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिकॉज शायद पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि एज पेरेंट्स हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस प्रोग्राम की शुरुआत भी वहीं से हुई है दैट पेरेंट्स कैसे भागीदारी कर सकते हैं। और मैं इसमें शैलेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो ऐसी ये गैदरिंग पे जब हम पेरेंट्स इंगेजमेंट और पेरेंट्स संवाद की बात कर रहे थे, आई थिंक वो इस बात पे रोशनी डालता है कि शायद हमें इस पेरेंट इंगेजमेंट प्रोग्राम की, पेरेंट संवाद की क्या ज़रूरत पड़ी। तो शायद ये पहला या दूसरा मेगा PTM था जो सबको ध्यान में होगा, 2016 की बात है। और एक क्लास में एक टीचर जो है अपने एक पेरेंट को बता रहे थे और बड़ी शिद्दत के साथ बता रहे थे उनसे कि आपको ना अपने बच्चे की पढ़ाई में और ध्यान देने की ज़रूरत है। और पेरेंट जो माँ थी वो पूछ रही थी कि मतलब क्या करना होगा। नहीं आपको और मेहनत करनी होगी। तो उन्होंने पूछा एग्जैक्टली क्या मेहनत करनी होगी। उनका नहीं, थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत है। तो दिस मदर सेज कि मैंने तो ट्यूशन भी लगा लिया है और स्कूल भी रोज आता है, किताब भी उसके बस्ते में मैंने देखी है, वो आकर के कुछ लिखता भी है। अब इसके अलावा और मैं क्या कर सकती हूँ। एंड द टीचर वॉज हेलबेंट कि नहीं आपको ना और इससे भी ज़्यादा मेहनत करने की। तो दोनों ही इस बात पे वो थे कि मुझे और करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ की जैसे जैसे बच्चा क्लासेस में अपने आगे बढ़ता है, पहली से दूसरी पांचवी, एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल उसको और दूर करता चला जाता है। शायद माँ बाप को भी तमाम बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ या मैं कुछ पूछ सकती हूँ या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। बच्चे को भी लगता है कि ये क्या बताएंगे मेरे को। तो ये दूरियाँ और बढ़ने लगती है और उस दूरियों की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। तो शायद इस माध्यम से उस दूरियों को भी ब्रिज करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो अनुराग जी ने सवाल पूछा कि कैसे कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, और जो आतिशी जी ने उसका उल्लेख किया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी राइट टू एजुकेशन एक्ट का हिस्सा है। देखिए, कानून बहुत ज़रूरी चीज़ है, कानून होना चाहिए, उसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, बट कानून कभी कभी चीज़ों को मिस्टिफाई भी बहुत कर देता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसका एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश में कि वो कानून का हिस्सा है, इसलिए वो बहुत ही मिस्टिफाइड हो जाता है। उसे डीमिस्टिफाई करने की ज़रूरत है और यही काम आप सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कि बहुत छोटी सी बात है
मुझे अपने स्कूल, मुझे अपने बच्चे के साथ जुड़ना है, और वो जुड़ाव में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, पेरेंट्स की एक भूमिका हो सकती है। रॉकेट साइंस नहीं है। इसी चीज़ को समझना है, इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, इसी के साथ चलना है। तो इसके बाद देखते हैं कि स्कूल लेवल पे कैसे डीमिस्टिफाई, जो आपने जिक्र किया हुआ। मैम, आप एसएमसी मेंबर रही हैं विद्यालय में, आपने क्या बदलते देखा अपने विद्यालय में इस प्रोग्राम के कारण? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने इस स्कूल में देखा है कि पहले पेरेंट्स स्कूल में आते हुए डरते थे, अब एसएमसी बनने से और स्कूल मित्र बनने से इतने फ्रैंकली बात करते हैं कि कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है एसएमसी मेंबर को फ़ोन करके बताते हैं, मैम हमारे बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम होती है वो हम उन टीचर के साथ में या एचओएस के साथ में शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इससे क्या होता है कि उनका हमारा रिलेशन इतना अच्छा हो गया है कि अब पेरेंट्स हर एक कोई स्कूल में ना जाके हमसे बात करने के लिए तैयार रहता है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा ये, जैसे हम ऑनलाइन अब कॉलिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम पूछते रहते हैं कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, ठीक चल रही हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं मैम स्कूल कब खुलेंगे, बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं। फिर उसके लिए हम बोलते हैं बच्चों को कि अब आप स्कूल में जब स्कूल खुलेंगे तब खुलेंगे, लेकिन अभी आप स्कूल से जो आपको काम मिलता है वो करिए। उसके अलावा हम उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे सारा दिन स्कूल के बाद जो वर्कशीट मिलती है उसके बाद क्या करते हैं। तो फिर कई पेरेंट्स तो जो मदर ही, ज़्यादातर मदर से ही बात होती है, तो यही बोलते हैं मैम खेलते रहते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपने कभी इंटरेस्ट नहीं पूछा अपने बच्चे से भी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बोलते हैं नहीं। फिर मैं उनसे फर्स्ट कॉलिंग में ये पूछती हूँ, सेकंड में पूछती हूँ आपने इंटरेस्ट पूछा उससे तो उसने कुछ काम किया। तो मैं आपको यकीन के साथ बताती हूँ कि वो पेरेंट्स इतने खुश होते हैं कि मैम मेरे बच्चे ने इस बार ये काम किया है, इतनी इसने ड्राइंग पेंटिंग बनाई है, इस बच्चे ने ये गाना सीखा है, ये बच्चा डांस करता है। अब वो कहते हैं कि हम डांस क्लास के लिए नहीं भेज सकते, तो मैं उनको बोलती हूँ डांस दीवाने आता है टीवी पे, आप उसमें देखिए, उसमें सीखिए आप उनसे। तो मतलब इतना अच्छा रिलेशन हो गया हमारा एसएमसी मेंबर का और पेरेंट्स का कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम। जो अभी हमारे एसएमसी मेंबर ने जिक्र किया, आप टीचर हैं मैडम, मतलब मैं अगर टीचर के पर्सपेक्टिव सोचिए तो बड़ा अच्छा कि जो एरियाज मुझे समस्याएं आ रही थी, चाहे वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो एजुकेशन में, होमवर्क कराने से लेकर हो, रेगुलर अटेंडेंस इंश्योर करने से लेके हो, तो टीचर्स को तो एक बहुत अच्छा एक एलाय मिल गया है, एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। तो ये आपका अनुभव रहा अपने स्कूल में, टीचर्स को सपोर्ट मिला? हाँ जी सर, जैसे हर बच्चे के बारे में जानना, उस तक पहुंचना कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। हमें नहीं पता लगता था कि इसमें क्या टैलेंट है या क्या चाह रहा है, इसका इंटरेस्ट किधर है। तो हमें पेरेंट्स के साथ और बच्चे को अच्छे से समझने में एसएमसी मेंबर और स्कूल मित्र का काफ़ी सहयोग मिला है। हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बच्चे के बारे में जानने को मिली है जो हम एज ए टीचर क्लास में पढ़ाते हुए उनको नहीं समझ पाए थे। एब्सोल्युटली। मेरा अंतिम सवाल मैडम आपसे हैं, आप सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही इस प्रोग्राम की, क्योंकि आप पेरेंट मेंबर हैं, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ एसएमसी मित्र के हेल्प के कारण। तो आप एक्साइटेड हैं खुद एक एसएमसी मित्र बनने के लिए? बिल्कुल सर, मैं सोच रही थी कि मेरे से आप एक क्वेश्चन प्लीज़ करें, बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ जब एक हेल्प करने की आती है, क्योंकि मेरी हेल्प हुई है तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर कोई पेरेंट है जिनको मदद चाहिए तो मैं उनकी आगे बढ़ के मदद कर सकूँ। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं डेफिनेटली इसमें अपना योगदान दूँ और इसमें हेल्प करूँ बाकी पेरेंट्स को, ताकि उनको कोई समस्या अपने बच्चे के प्रति ना आए। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for everyone for taking part and sharing your experiences very honestly and frankly. Thank you. Thank you very much, Anurag Kundu sir, for doing the honors. It was indeed a wonderful panel discussion, and I think अब सबको clear हो गया कि सब stakeholders के different roles क्या हैं। हम अगर बताते लेक्चर से तो इतना अच्छा क्लियर नहीं होता जितना इस पैनल डिस्कशन में हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वंडरफुल पैनल डिस्कशन स्टीयर्ड सो वेल बाय अनुराग कुंडू सर, ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ द DCPCL. And thank you to all the participants. Thank you so much. You may please take your seats back in the stadium. Thank you. It is rightly said, a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way.
I take this opportunity today to welcome one such leader, our new Director Education, Mr. Himanshu Gupta, IAS and an IITian too. A leader with the power of ideas, ambition, and reality. May I request our young, polite, energetic, dynamic administrator, our very own worthy Director of Education, Mr. Himanshu Gupta, who will be addressing all the HOS together for the first time today. A warm welcome. थैंक यू। मंच पे उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, MLA आतिशी जी, चेयरपर्सन DCPCR कुंडू जी, प्रिंसिपल एडवाइज़र शैलेन जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर और सभी उपस्थित यहाँ के HOS और हमारे जो SMC के मेंबर्स आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज बहुत ही एक अच्छा दिन है और एक सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं आप सबको संबोधित करूं। मैंने भी अपनी जो पढ़ाई करी थी वो दिल्ली से ही पढ़ाई करी थी और मैं अपना भी खुद का एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, फादर मेरे जॉब में थे। तो जितना भी मैं अपनी आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं IAS का मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा, मैंने इंजीनियरिंग IIT से करी, मैं उसका श्रेय अपनी मदर को देना चाहता हूँ। और इसका रीज़न ये है कि चाहे मेरी मदर ने मुझे बहुत पढ़ाया नहीं, क्लास 4th 5th तक तो वो पढ़ाती थी, उसके बाद उनका जो कांस्टेंट मेरे ऊपर जो सुपरविज़न रहता था और मोटिवेशन रहता था कि बेटा आपको आगे बढ़ के ये करना है, आपको सबसे ज़्यादा मुझे जो मोटिवेट किया था कि बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है या IIT का एग्ज़ाम क्लियर करना है या UPSC का एग्ज़ाम की तरफ वो करना है, वो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी माताजी ने प्रेरित किया था। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट जो एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। तो ये चीज़ जो है ये मैंने खुद इस चीज़ को बहुत वो किया है। अच्छा, हमारे जितने भी दोस्तों का ग्रुप था उसके अंदर भी हमारे एक दिल्ली सरकार की ही एजुकेशन की एक टीचर थी, अभी वो रिटायर हो गई हैं। मेरे बहुत क्लोज जो स्कूल फ्रेंड थे उनकी मदर टीचर थी। तो हम जब भी मिलते थे वो यही पूछती थी कि बेटा स्कूल के अंदर कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। शुरू में तो हमको लगता था कि यार ये बार बार जब भी मिलने जाओ दोस्त से स्कूल की बातें होती थी, लेकिन उससे हम लोगों पर बहुत प्रेशर रहता था। एक पूरा क्या बोलते हैं, कोई भी दोस्त किसी के घर पे आता था तो मदर फादर हमेशा एक इस तरीके से वो रहता था कि बेटा पढ़ाई जो है बहुत ही आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट वो है। तो इस चीज़ पर हमको हमेशा कॉन्स्टेंटली मोटिवेट भी किया जाता था, हमारे सुपरवाइज भी किया जाता था और हर तरीके से मतलब हम लोग मिलके तो हम जो 7 लोग हमारे स्कूल के दोस्त थे, आज एक US के अंदर बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर भी कोई काम कर रहा है, कोई UK भी गया हुआ है। तो मैं इसका श्रेय पेरेंट्स को और हमारे जो फ्रेंड्स के मदर फादर हैं मैं उनको देना चाहूँगा। तो ये इस चीज़ को एक ये सिर्फ आप अगर स्टडीज़ भी देखेंगे, बहुत सारी जो स्टडीज़ करी गई हैं, जैसे PISA की स्टडी हुई है, UK के अंदर स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि बच्चे की एजुकेशन के अंदर सिर्फ टीचर्स का या स्कूल का रोल नहीं होता, पेरेंट्स और कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप साउथ कोरिया देखेंगे, आप UK देखेंगे, US देखेंगे, उन सारी कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिटी आउटरीच बहुत ज़्यादा बहुत हैवी है और उसी के चलते उन कंट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो पेरेंट्स और कम्युनिटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है अगर वो चाहते हैं कि हमारे पूरा समाज मिलके, हमारे बच्चे मिलके आगे पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी नौकरियां पाएं, जॉब गिवर्स बने। जैसे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के अंदर आ रहा है, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आ रहा है कि बच्चे हमारे सिर्फ जॉब टेकर्स ना बने, जॉब गिवर्स भी बने। उसके अंदर बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स और कम्युनिटी का है। स्कूल मित्र जो अभी हमने अपॉइंट करे हैं, 22,000 स्कूल मित्र अपॉइंट करे हैं। हमारे SMC के जो मेंबर्स हैं वो भी 12,000 नंबर में हैं। उन सब की ट्रेनिंग कराई गई है, सभी प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराई गई है। उसका आइडिया यही है कि पूरा एक हॉलिस्टिक वे में एजुकेशन को
हमारे समाज के अंदर एक जो एक निगलेक्टेड वे में पहले देखा जाता था, अब उसको वो दर्जा दिया जाए कि हर बच्चा जो अंतिम, जो लास्ट हमारा माइल, जो बच्चा वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, उसका भी ख्याल रखा जाए। तो उसका ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स तक पहुंचा जाए, उसके आसपास के लोगों तक पहुंचा जाए, उसके जो ग्रुप है, जो दोस्त हैं, उन सब तक पहुंचा जाए। तो स्कूल मित्र इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है अभी जो पेरेंटल आउटरीच प्रोग्राम है, और मैं आशा करता हूं कि ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। अभी जो हमारे 16 लाख बच्चे हैं और अभी बढ़ के इस बार एनरोलमेंट अभी और बढ़ गया है, तो 18 लाख तक पहुंच गए हैं। तो उन सब के परिवारों तक हम पहुंच सकें और ये पूरा एक फैमिली की तरह मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें और आगे बढ़ के हमारे बच्चे जो हैं वो सभी का नाम रोशन करें। हमारा सिर्फ स्कूल का नहीं, पूरे दिल्ली DOE का नाम रोशन करें। आप सब इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। ये अभी शुरुआत हुई है एंड आई एम श्योर कि ये पूरा, जब ये प्रोग्राम आगे जिस स्पीड से बढ़ेगा, सभी लोग जो है इस चीज़ को आगे लेकर चलने में सब पूरा योगदान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड आई एम श्योर, जैसे कि सर ने कहा कि अब हमारी फैमिली और बड़ी हो गई है और हमने हर बच्चे के पास पहुंचना है, हर अंतिम बच्चे के पास पहुंचना है, और ये फैमिली और बड़ी करके अपने बच्चों की ग्रोथ में हम सभी हेल्प करेंगे। और अब समय है एक ऐसी हस्ती को स्टेज पे बुलाने का जिन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। सर इज अ हार्बिंगर ऑफ चेंज who has changed absolutely the stereotypical perception everyone had of government schools. With the various new initiatives and interventions, the Delhi government school model is being emulated not only in India but in abroad. आपने ही किया है शिक्षा का सुधार किया यहाँ पर विविध प्रकार। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि से किया हर समस्या का समाधान। पेरेंट संवाद और पेरेंट्स आउटरीच प्रोग्राम भी आज है उसी का परिणाम। May I have the honor to welcome on stage and request our Honorable Deputy CM and Education Minister, Mr. Manish Sisodia, sir, to address all of us. A big round of applause for sir. एक बार फिर से सबको नमस्कार। लगभग अंतिम वक्ता तक आते आते किसी भी इतनी बड़ी गैदरिंग में एक सुविधा या समस्या रहती है कि या तो सारी बात समझ में आ गई होती है और लोग सोचते हैं अब क्यों बेकार समझा रहे हो, समझ गए, या फिर लग रहा होता है कि देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोने दो। तो इसीलिए भारतीय व्यवस्था में परंपरा है कि जब कोई बात शुरू की जाए तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो, नमस्कार से की जाए ताकि सोते हुए भी जग जाएं और जो समझे हुए हैं वो भी थोड़े से रुक जाएं। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है? नमस्कार। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग बैक। मैं कई साथियों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था अपने, और इस पूरे प्रोग्राम को जब से देख रहे हैं, स्कूल मित्र प्रोग्राम, आतिशी जी ने कहा कि SMC प्रोग्राम पूरे देश में, केवल दिल्ली में बहुत स्ट्रीमलाइन होके चल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन स्कूल मित्र प्रोग्राम जैसा पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम तो जितना बड़ा इसका स्केल है, सोचिए 18 लाख पेरेंट्स तक 1-to-1 आउटरीच करने का ये प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में कभी इतना हुआ होगा कि 18 लाख पेरेंट्स तक कोई स्कूल सिस्टम। हिमांशु जी डायरेक्टर साहब ने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज या जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, वहाँ ये कल्चर बन चुकी है। तो जहाँ कल्चर बन गई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो बाय डिफॉल्ट चल रहा है। प्रयास करके 18 लाख, 18.5 लाख तक पेरेंट्स तक एक एक करके एक एक बच्चे तक पहुँचने का ये प्रयास वाकई बहुत बड़ा प्रयास है। इसको सफलता मिले ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको, जो इसको एनवेसाइज करके, जो इसको आज यहाँ अपने मन में बिठा के, दिल में बिठा के यहाँ आए हैं। हम सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं,
24 घंटे कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी कुछ सीख रहे होते हैं। आदमी जो आदमी है वो कुछ ना कुछ सीखेगा, सीखता रहता है, और बचपन तो सीखने के लिए ही है। 24 घंटे में से बचपन के 6 से 7 घंटे का समय लगभग टीचर्स के गाइडेंस में सीखता है बच्चा, उनके संरक्षण में सीखता है, और बाकी का 17-18 घंटे पेरेंट्स के संरक्षण में सीखता है। हम चाहें नहीं चाहें, हम योग्य हों या नहीं हों, लेकिन यह घटना तो घट रही है। अध्यापक योग्य हो या नहीं हो, बच्चा अगर स्कूल में आ गया है तो गलत सीख के जाए या सही सीख के जाए, अधूरा सीख के जाए या पूरा सीख के जाए, घटना तो घटेगी। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप स्कूल में टीचर हैं और आपके पास एक बच्चा आ गया है 7 घंटे के लिए, चाहे वो आपसे ना पढ़ाना सीख के जाए, चाहे अपने सब्जेक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन सीख के जाए, या उसका इतना शानदार इंटरप्रिटेशन सीख के जाए कि जो कह नहीं सकते, उसको सब समझ में आ जाए, लेकिन सीखेगा तो वो है। वही घटना घर में भी घटनी है, आसपास भी घटनी है। माँ बाप कहें कि नहीं कहें कि हमसे बच्चा कुछ सीख सकता है, माँ बाप माने या ना माने, माता पिता इस बात के लिए तैयार हों या खुद को तैयार करें कि नहीं करें कि हम अपने बच्चे को कुछ सिखाएंगे अपने से, या हमारे संरक्षण में बच्चा कुछ सीखेगा, घटना तो घटनी है। प्रकृति का नियम है, अगर परिवार है, उस परिवार में अगर माँ बाप और बच्चे साथ साथ हैं तो बच्चा माँ बाप के संरक्षण में कुछ ना कुछ तो सीखेगा, अच्छा सीखे या बुरा सीखे, खराब सीखे या सही सीखे, लेकिन सीखेगा तो है। तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं, क्योंकि जब बच्चा सीख रहा है तो 7 घंटे जिनसे सीख रहा है उनका तो योगदान है ही है, 17 घंटे जिनसे सीख रहा है उनका भी योगदान सुनिश्चित हो और सही दिशा में हो। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा ना हो 17 घंटे बच्चा इधर सीखे, एक माइक को इधर कर दो और एक माइक को उधर कर दो, तो मेरी आवाज आप तक आएगी नहीं। तो बच्चे का फ्यूचर दोनों माइक की आवाज से मिलकर बने, ये बहुत जरूरी है। मैं कुछ कहूंगा इस पेरेंटिंग के बारे में, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे से सहमत हों, ना सहमत हों, बहुत सारे लोगों को कुछ अपवाद भी दिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी जेनरिक बात कहूंगा। हमारे देश में 17 घंटे की जो शिक्षा जिसका मैंने जिक्र किया, पेरेंटिंग, हमारे देश में पेरेंटिंग दो तरीके की लार्जली देखने को मिलती है, तीसरी अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रही है नई जनरेशन में। एक पेरेंटिंग है जीरो पेरेंटिंग। माँ बाप मान के चलते हैं हमें भी भगवान ने पाला पोसा बड़ा किया था, बच्चे को भी भगवान ही देखेगा, अपने को टेंशन नहीं है। जीरो पेरेंटिंग, पेरेंटिंग की कोई भूमिका नहीं है। माँ बाप को लगता है भाई हमने अपने माँ बाप से थोड़ी सीखा था, हमने तो यारों दोस्तों से शराब पीना सीखा था, गाली सीखी थी अपने अड़ोस पड़ोस से, इतना बढ़िया फिजिक्स का लेक्चर देना सीखा था अपने फिजिक्स के टीचर से, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखे थे अपने मैथमेटिक्स से या कलीग से। जब हमने ऐसे सीखा था तो बच्चे भी ऐसे सीखेंगे, अपने को क्या टेंशन लेने की जरूरत है, सब सीख जाएंगे, भगवान ने पैदा किए तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। जीरो पेरेंटिंग। दूसरा है ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग को मैं कहता हूं कि जहां भी हमारे घरों में पेरेंटिंग के नाम पे कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली पेरेंटिंग नहीं हो रही, बॉसिज्म है। हमारे घरों में मां बाप कम देखने को मिलते हैं, बॉस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा उनकी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी के मालिक है। आप बिहेवियर देखिए, हम सब का, मैं यहां बैठे लोगों को कहूंगा, दूसरों को बात छोड़ दीजिए, किताबों में क्या लिखा है, मैं क्या कह रहा हूं, अपने घर में सोच लीजिए, हमने जो झेला या हम जो झेला रहे हैं, उसमें से कितनी जगह ये बात सही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम प्रॉपर्टी की तरह से लेते हैं। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे हिसाब से चलेगी। ये मकान तो मैंने बनाया, इस पे नीला पेंट अगर मुझे पसंद है तो नीला ही करूंगा, इस मकान का अपना कलर भले ही कुछ उभर के आ रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अगर तय कर लिया है कि बच्चे को इंजीनियर बनना है, तो फिर बच्चा सोच कैसे सकता है कि म्यूजिक में जाएगा। मैंने अगर तय कर लिया कि हमारी बच्ची, मुझे अगर समझ में आ गया, तय भी नहीं कर लिया, मुझे अगर समझ में आ गया कि मेरा बच्चा तो आईएएस बन सकता है, तो उसके बाद बच्चा भले ही कहता रहे नहीं जी मेरे को तो टीचर बनना है, मेरे को तो टीचर बनना है, मेरे को तो पढ़ाने में मजा आता है, मेरे को तो क्लास सिखाने में मजा आता है, नहीं जी अब तो तुम्हें आईएएस ही बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम नखट हो। ये बॉसिज्म है। हमारी जनरेशन बाय जनरेशन बॉसिज्म का शिकार होती रही है। मैं समझता हूं स्कूल मित्र कार्यक्रम से हम इस बॉसिज्म को कुछ कम कर पाएं तो बड़ा कल्याण होगा।
निर्देश पे चलना है, हमने तय कर लिया है उसी हिसाब से चलना है। इसका शिकार हैं हमारे बच्चे। बच्चे के रूप में हम में से भी बहुत लोग शिकार रहे हैं, और हम भी जब हमें लगता है जब हमने झेला है तो हम तो झेलाएंगे। हम कैसे छोड़ सकते हैं अगली जनरेशन को? तो सबसे पहला काम इस बॉसिज्म को खत्म करना है, और बॉसिज्म को खत्म करने का काम कलेक्टिव रूप से हो सकता है। हमारे स्कूल मित्र, हमारे टीचर्स, अभी हमने मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू किया, इन सबको मिला के ये बॉसिज्म खत्म हो सकता है। अभी आप किसी पेरेंट को जाके बोलो कि भाई बॉसिज्म खत्म करो, इससे नहीं चलता है, तो मानेगा थोड़ा ही। लेकिन जब आप विकल्प दोगे उसका, सामान्य भाषा में कहते हैं ना, एक लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दो, तो ये बड़ी लकीर खींची जा रही है कि बच्चे के इर्द गिर्द पेरेंटिंग, टीचर, मेंटर सब कुछ खड़े हो रहे हैं। अभी स्कूल मित्र खड़े हो रहे हैं कि आइए मिलके खड़ा करते हैं इस बच्चे को। ये बच्चा राष्ट्र की धरोहर है, अगर धरोहर भी है तो राष्ट्र की धरोहर है, खाली परिवार की थोड़ी है। तो इसको मिलाने का एक बड़ा काम आज ये स्कूल मित्र प्रोग्राम से शुरू हो रहा है। एक मैंने कहा कि जीरो पेरेंटिंग है, दूसरा ओवर पेरेंटिंग या बॉसिज्म है, तीसरी एक नई पेरेंटिंग शुरू हुई है जिसका जिक्र मैं सुनता हूं कई जगह। कई माँ बाप न्यू जनरेशन के कहते हुए मिलते हैं, हम तो ना अपने बच्चों के पेरेंट हैं ही नहीं, हम तो फ्रेंड हैं। वहां भी फिर पेरेंटिंग समझ में नहीं आई। पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? फ्रेंड्स अपने आप में एक अलग रिलेशनशिप है। जबरदस्ती फ्रेंड बने जा रहे हो, या तो बॉस बनोगे या कुछ नहीं बनोगे, या फ्रेंड बनोगे, पेरेंट नहीं बनोगे। तो पेरेंट्स बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग समझ में नहीं आती। पेरेंट्स क्या होते हैं? तो पहले तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वहां से थोड़ा सा ऊपर उठे तो टीचर के ऊपर छोड़ दिया, वहां से थोड़ा सा ऊपर उठे तो बॉस बन गए। हम देखते हैं, लाओ हमारे हाथ में कमांड दे दो, हम पेरेंट हैं। पेरेंट वो भी समझ में नहीं आया तो बोले नहीं हम तो पेरेंट हैं ही नहीं, हम तो फ्रेंड हैं। अरे भाई, फ्रेंड बच्चा अपने आप अपनी उम्र के लोग बना लेगा, तुम पेरेंट बनो। बच्चे को फ्रेंड्स की भी जरूरत है और पेरेंट्स की भी जरूरत है। तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की जरूरत है और इसको समझ के इस पे काम करने की जरूरत है। स्कूल मित्र प्रोग्राम इस पे बहुत चिंतन करके, बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया। शैलेंद्र जी ने एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे टीचर्स के सामने, हम सब के सामने रोजाना सामने आते हैं। जब पेरेंट टीचर मीटिंग कराई पहली बार, तो पहली पेरेंट मेगा पीटीएम के बाद मैंने स्कूलों में जाके पूछना शुरू किया बच्चों से, टीचर्स से कि भाई इस पीटीएम का कोई फायदा हुआ? तो बच्चों ने भी कहा हाँ जी हुआ। मैंने पूछा क्या फायदा हुआ? तो बच्चे कुछ सर हम कुछ रटी रटाई भाषा, सर पेरेंट्स को पता चल जाता है, अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है कुछ। तो मैं बच्चों से स्कूल में असेंबली में जाके कहता था, आपके स्कूलों में कुछ गया होऊंगा, किसी स्कूल में ये चर्चाएं हुई होंगी, आपके भी किसी ना किसी में, हर स्कूल के एचओएस बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं कुछ। मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, भाई एग्जाम्पल दे के बताओ क्या फायदा हुआ पीटीएम से। अगर एग्जाम्पल दे के नहीं बताओगे तो पीटीएम बंद करा देते हैं। तो पटपड़गंज विधानसभा में खिचड़ीपुर के एक स्कूल की एक बच्ची ने खड़े होकर मुझसे कहा, सर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं पढ़ती लिखती ऐसे ही हूं, पढ़ने लिखने में सामान्य होंगी, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे ऊपर प्रेशर बना के रखती थी, बेटा देख थोड़ा सा पढ़ ले, बाकी शादी करवाई देंगे तेरी। लड़की का है, कोट एंड कोट। वो कहा कि मम्मी का हमेशा प्रेशर रहता था, क्या करेगी ज्यादा पढ़ लिख के, घर का काम सीख, घर के काम में सीख, खाना बनाना सीख, चाय बनाना सीख, बर्तन साफ करना सीख, किचन चलाना सीख, शादी करवा देंगे यही काम आएगा। बोली लेकिन सर जब से ये पीटीएम हुई ना, पीटीएम के बाद मेरी मम्मी को भी समझ में आ गया कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक हूं, क्योंकि टीचर और मम्मी की ठीक से बात हो गई। उसके बाद मम्मी मेरे ऊपर घर के काम करने का इतना प्रेशर नहीं डालती। ये 2015 हमने 15 में कराई थी, 2015-16 की घटना है, 16 की घटना होगी। ये रियलिस्टिक अप्रोच है बच्चों का कि जो बच्चे इस चीज को झेल रहे हैं। एक और स्कूल में हैप्पीनेस प्रोग्राम हमने शुरू किया, तो मैं जात के पूछता था, जंगपुरा के स्कूल में मैं और आतिशी दोनों थे। वहां पे हमने जाके पूछा, भाई हैप्पीनेस क्लास का कोई फायदा हो रहा है? तो बोले हाँ जी हो रहा है, सारे बच्चे बताते हैं, सब मन शांत रहने लगा है, फोकस रहने लगा है। तो वहां भी मैंने क्लासिक एग्जाम्पल पूछे कुछ। तो एक क्लास में खड़े होकर एक लड़की ने कहा, सर ये मैं थोड़ा सा डार्क साइड बता रहा हूं, पॉजिटिव साइड भी बहुत है, डार्क साइड मतलब पॉजिटिव चीजों पे भी बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ है, डार्क साइड पे कंट्रीब्यूशन हुआ है।
वो लड़की बोली कि सर हमारे घर में ना थोड़ा सा, अपनी भाषा में उसने बोला, जेंडर डिस्क्रिशन होता है। मेरे घर में मेरा भाई है, उसको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, मुझको गवर्नमेंट स्कूल में भेज रखा है। सुबह उसके बच्चे, मेरे भाई के गिफ्ट आने से लेकर उसको यूनिफॉर्म अच्छी ड्रेस दिलाने से लेकर सब कुछ में डिस्क्रिशन होता है। लड़का 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 होता रहता है हमेशा घर में। और मुझे रियलाइज करा जाता है तू तो लड़की है, तू तो लड़की है। और टिफिन पैक करके देने तक में कहीं ना कहीं रहता है, भाई को अच्छी चीजें मिल जाती हैं, मेरे को ऐसी मिलता है। कहती है तुम्हें तो मिड डे मील मिल जाएगा। तो वो लड़की कहती है सर मैं बहुत रोते हुए स्कूल आती थी, कुंठा में भर के स्कूल आती थी। आप सोच के देखिए, इस कुंठा में आई हुई लड़की स्कूल में आके आप उसको कहते हो अब साइंस पढ़, अब हिस्ट्री पढ़, अब ज्योग्राफी पढ़, उसकी तो अपनी ज्योग्राफी दिमाग खराब हो रखा है, कैसे पढ़ेगी? बोली सर जब से आपने ये हैप्पीनेस क्लास शुरू की है, मैं घर पे जो भी झेल के आती हूँ 1 घंटा माइंडफुल मेडिटेशन होता है, हैप्पीनेस की एक्टिविटीज, कहानियां होती हैं, उसके बाद मैं घर वाले माहौल से निकल जाती हूँ। अब मुझे मेरे टीचर्स जो पढ़ाते हैं मैं पढ़ पाती हूँ। ये पेरेंटिंग की समस्या है। मैं हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस पे यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, पेरेंटिंग की समस्या है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे बीच में। लड़कों के बीच में भी यही है, माँ बाप प्रेशर बनाए रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, और फिर या तो फ्रेंडली हो जाएंगे या बॉस हो जाएंगे या जीरो पेरेंटिंग पर उतर आएंगे। तो इन सब के बीच का पेरेंटिंग एक कहीं बीच का रास्ता है। उसमें अब हम पेरेंटिंग की वर्कशॉप करा के दिल्ली के 16 लाख पेरेंट्स को एक साथ तो नहीं बिठा सकते, और उसमें शायद समय लगेगा उस समय को आने में। आई विश कि एक दिन ऐसा आए कि दिल्ली में या देश में जब भी बच्चा स्कूल में पढ़ने आए तो बच्चे का स्कूल में दाखिला बाद में हो एज ए स्टूडेंट, पहले उसके पेरेंट्स की कम से कम 7 दिन की वर्कशॉप होनी चाहिए फॉर पेरेंटिंग की, और हर साल होनी चाहिए कि अब आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, 5 साल के बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, इस बात की वर्कशॉप हफ्ते भर की पहले पेरेंट्स की होनी चाहिए, उसके बाद में बच्चे को स्कूल बुलाना चाहिए। अब आपका बच्चा टीन एज में आ गया है, अब आपका बच्चा कैरियर एज में आ गया है, अब आपके बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स बनने लगे हैं, उन सब की जानकारी, उस भाव की जानकारी जिन भाव से बच्चा गुजरता है किसी पर्टिकुलर एज में, उन सब की वर्कशॉप प्रॉपर पेरेंट्स की होनी चाहिए। मैं विजुलाइज करता हूं और मैं कामना करता हूं कि हम दिल्ली के शिक्षा विभाग से ही यह परंपरा शुरू करेंगे किसी ना किसी दिन, और आज स्कूल मित्र प्रोग्राम उसका मील का पत्थर साबित होगा। आज जो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं ये उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उसकी जरूरत है, उसमें समय लगेगा, उसकी बहुत बड़ी तैयारी चाहिए, उसके उतने लेवल पर काउंसलर्स चाहिए, लेकिन उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब धीरे 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 बढ़ रहे हैं और एक दिन पहुंचेंगे जरूर। उस संवादहीनता को थोड़ा सा कम करने में हमारी ये स्कूल मित्र जो हैं, जिनका जिक्र, जिनका थोड़ा सा पायलट का उदाहरण आपने अभी देखे अपने अलग अलग लेवल पर, हम एक चीज और देखते हैं अपने परिवारों में कि पेरेंटिंग की सबसे बड़ी जो चीज होती है कोविड के पीरियड में हमको देखने को मिली, क्योंकि 7-8 घंटे बच्चा स्कूल चला जाता था तो पेरेंट्स के लिए ब्रेक हो जाता था। अभी 24 घंटे बच्चा घर में है और बहुत मुश्किल हुआ है पेरेंट्स और बच्चों का साथ में रहना। ना बच्चों को इसकी ट्रेनिंग है कि 24 घंटे माँ बाप के साथ कैसे रहा जाए, और ना पेरेंट्स को इसकी ट्रेनिंग है कि 24 घंटे बच्चों के साथ कैसे रहा जाए, और दोनों ने एक दूसरे को झेला है। उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झेला भी गया है। तो वैसे क्रम में कुछ घटनाएं खासतौर से दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स, उन परिवारों में जहां से हमारे बच्चे आते हैं, वहां देखने को मिली कि लड़की के केस में शादी करा दी गई, कहीं माँ हाउसमेड थी, उसने उस लड़की को कहा आप छोड़ पढ़ाई वढ़ाई क्या करेगी, हाउसमेड लग जा। लड़के को किसी दुकान पे लगा दिया क्योंकि पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, बोले ऑनलाइन ही तो करनी है, ठीक है की नहीं की। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो आज के दौर में तो पेरेंट्स के साथ ये आउटरीच प्रोग्राम और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब स्कूल खुल रहे हैं। हमारे नवी से ये जब ऑनलाइन स्कूल सिस्टम पिछले साल शुरू किया तो हमारे टीचर्स ने, आई सैल्यूट दोज टीचर्स, गली मोहल्ले में माइक लेके घूम घूम के मुनादी कर करके पेरेंट्स को ढूंढा, भाई कहां हो, अपने बच्चे को लेके आओ यहां पे। अगर उस वक्त हमारे डिजाइन में
हमारा ये स्कूल मित्र प्रोग्राम फंक्शनल होता तो शायद हमारे टीचर्स को जितना घंटा उन्होंने मुनादी कर करके झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में घूमने में लगाए, ऑटो में बैठ के मैंने देखा मुनादी करते हुए, उन्होंने टीचर्स ने जहां इतना समय लगाया वो स्कूल में लगा रहे होते और हमारे स्कूल मित्र अपने अड़ोस पड़ोस से अपने संपर्क के 50 पेरेंट्स को ढूंढ के अपने आप ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे याद है मैं एक स्कूल में गया था तो वहां एक टीचर मिली जिन्होंने बताया कि अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, और खासतौर से जो बच्चे नगर निगम के स्कूल से 6ठी क्लास में गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूलों में आए थे, वहां तो उनको ढूंढने में ही बड़ी दिक्कत हो रही थी। अभी उनके साथ संवाद तो अलग चीज है, उनके परिवार के संवाद का डिस्कोर्स बदलना तो अलग चीज है, अभी तो वो मिल ही नहीं रहे थे। और स्थिति ये थी कि हमारे एक टीचर्स ने इनोवेटिव प्रयोग किया। उन्होंने जब कुछ बच्चे नहीं मिले और उनका एड्रेस देखा तो उन झुग्गियों में, उन अनऑथराइज कॉलोनियों में आसपास जाके परचून की दुकान पे जा जाके पूछा कि आप इस नाम के किसी बच्चे को जानते हो क्या, इसके माँ बाप ये हैं, इसको जानते हो क्या। कई बच्चों को तो उन्होंने परचून की दुकान पे जा जाके ढूंढा, क्योंकि परचून की दुकान वाला जानता है, हाँ जी वो आती तो है एक विमला जी, उनकी बच्ची तो है, शायद स्कूल में पढ़ती है तो सही उनकी बच्ची, वो विमला जी के घर पहुंच गई। हमारी एक टीचर ने तो इतना शानदार काम किया इस संबंध में, हो सकता है वो यहां बैठी हो इस सदन में, कि जब एक बच्ची ढूंढने से नहीं मिली, परचून की दुकान पे भी प्रयोग करने से नहीं मिली, तो उन्होंने पता किया, वो उसके पते पे पहुंच गई जो पता रिकॉर्ड में था। वहां पता चला कि जी यहां तो वो कब की छोड़ के चली गई लॉकडाउन के दौरान, अब कहां ढूंढे। तो उनको केवल इतना पता चला कि ये महिला मेड का काम करती थी घरों में, और यहीं कहीं गई होगी, आसपास ही गई होगी, बोल रही थी कि कहीं जा रही हूं। तो आपस में पड़ोसी इतना ध्यान नहीं रखते हैं, कहां गए। तो हमारी वो टीचर 15 दिन तक आसपास के इलाके में काम करने वाली मेड से पूछती रही कि इस नाम की किसी महिला को जानते हो जिसकी इस नाम की बेटी है, इस नाम की किसी महिला को जानते हो। तब किसी मेड ने बताया कि हाँ इस नाम की एक महिला फलाने सरदार जी के यहां काम करती है। हमारी वो टीचर उन सरदार जी के यहां पहुंच गई और वहां जाके उनसे पूछा कि तुम्हारी फलां नाम की बेटी है। वो एकदम सकपका गई कि ये क्या मतलब, कोई आदमी आके अचानक जिस घर में मैं काम करती हूं वहां आके मुझसे पूछ रहा है ये आपके फलां नाम की बेटी है, क्या हुआ, ऑल वेल। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजिए, इतना ही कहने आई हूं, मैं उसकी टीचर हूं। ये काम किया। ये सारा स्कूल मित्र क्यों चाहिए? स्कूल मित्र इसलिए चाहिए क्योंकि टीचर्स को यह काम करने के लिए पेरेंट्स चाहिए, पेरेंट्स की एक बड़ी टीम चाहिए। और भी बहुत सारे काम है जिनकी यहां पे चर्चा हुई, पर टीचर को, प्रिंसिपल को अपने स्कूल के बाहर 50 लोगों की टीम से नहीं हो रहा वो काम जिसकी आज जरूरत है, ग्राउंड पे जिसकी जरूरत है। अपने बाहर एक बड़ी टीम चाहिए। तो हमने ये तय किया कि अगर अब एक स्कूल में अगर 3000 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होंगे जो थोड़े एक्टिव होंगे, जिनके पास थोड़ा सा समय होगा, जो थोड़ी सी भागदौड़ कर सकते हैं, जो पेरेंट्स के साथ बाकी के साथ संवाद कर सकते हैं। तो हर 50 पेरेंट पे कम से कम एक पेरेंट तो ऐसा मिल जाएगा जो बाकी 50 पेरेंट्स के चिंता कर सके, उनको मदद कर सके। इतना सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए आतिशी जी, हमारे डायरेक्टरेट की टीम, हमारे SCRT की टीम और हमारे पायलट प्रोग्राम्स के प्रिंसिपल्स, SMC की टीम, जिन्होंने पिछले लगभग 1 साल से इस प्रोग्राम को किया, बधाई की पात्र है। क्योंकि कुछ सोचना आसान काम है, उसको करके दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। सोच लिया हमने और आतिशी जी ने बैठ के सोचा, शैलेंद्र जी ने, डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमसे बैठ के सोचा कि ऐसा करते हैं। डायरेक्टरेट में बैठ के, सचिवालय में बैठ के सोचना इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, उसको जमीनी हकीकत पे लेके आना इतना आसान नहीं है। पायलट प्रोग्राम के दौरान जिस टीम ने मिलकर इस पे काम किया और आज जिसके भरोसे पे हम ये कह रहे हैं कि लीजिए ये रहे 22,000 स्कूल मित्र, काम करिए, एक एक पेरेंट तक हम पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये केवल बच्चों की ट्रेसिंग, ट्रैकिंग का काम नहीं है, ये बच्चों की पूरी ग्रोथ का काम है। ये पेरेंट्स के ग्रोथ माइंडसेट को ग्रोथ देने का काम है। उस पर हम सब लोग बहुत सक्सेसफुल काम करेंगे। इसका और विस्तार होता रहेगा, इससे हम भी आपस में सीखते रहेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आखिर में, जैसा इस प्रोग्राम का एक मैंडेट है कि हमारे ये स्कूल मित्र, जो आप में से कई लोग हैं, एक फॉर्म भरवाएंगे, और वो फॉर्म बड़ा, क्योंकि एजुकेशन का मसला है, बड़ा कलरफुल, बड़ा आर्टिस्टिक डिजाइन किया गया है। ये फॉर्म है,
ये फॉर्म हर एक पेरेंट भर के अपने घर में चिपकाएगा 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक पेरेंट को अपने बच्चे के बारे में, मेरे बच्चे का नाम, उसके स्कूल का नाम, उसकी क्लास सेक्शन, क्योंकि कई बार पेरेंट्स से बात करो एक्चुअली उनको सेक्शन नहीं पता होता है, क्लास कई बार नहीं पता होती है, तो क्लास सेक्शन, मेरे बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, हम चाहते हैं कि पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो एक बार वो प्रिंसिपल का नाम लिख के अपने घर में लगा देंगे पोस्टर पे। उसके नीचे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूं। बच्चे ने घर पर कितने दिन स्कूल का काम किया, जैसा मैडम ने बोला हमारी मित्र ने कि आप 5 मिनट दे दीजिए अपने बच्चे को, पढ़े लिखे हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट तो हो। 5 मिनट के लिए अपने बच्चे से शाम को सुबह किसी समय बात कर लीजिए और ये भर दीजिए बच्चे ने घर पर कितने दिन स्कूल का काम किया, बच्चे के साथ हमने कितने दिन बैठ के बात की, पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है, बच्चे के साथ कितनी बार खेल या मनोरंजन का कार्य किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से उन परिवारों में जहां थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वहां लोगों को लगता है पैसा दे तो दिया, गिफ्ट दे तो दिया, महंगा मोबाइल दे तो दिया, इसको घूमने के लिए, फिल्म देखने के लिए पैसे दे तो दिए, इसको सिनेमा दिखाने, मॉल में खिलाने ले तो गए थे। मैंने इसी मंच से पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करना ही पेरेंटिंग नहीं है। बच्चों को समय देना अलग बात है, बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करना अलग बात है। ये बात हमें अपने अपने पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी। आमतौर पर ये सोचने लगते हैं कि बस पैसा दे दिया तो हो तो गई पेरेंटिंग, हो तो गया काम, नहीं हो रहा है। मैंने इसको काटा है, कहा है कि भाई अगर आप 3 घंटे की एक मूवी दिखाने आप बच्चे को मॉल में ले जा रहे हो और सोचते हो हमने बच्चे को समय दिया, तो माफ कीजिएगा, आपने बच्चे को समय नहीं दिया, अपना समय शाहरुख खान को दिया और अपने बच्चे का भी 3 घंटे का समय निकाल के शाहरुख खान को दे दिया, बच्चे को नहीं दिया। ये बात पेरेंट्स को समझ में आनी जरूरी है, हमारी कोशिश है इसमें। तो हम पूछ रहे हैं उनसे कि बच्चे के साथ कितनी बार खेल या मनोरंजन का कार्य किया, उसमें फिल्म दिखाना शामिल नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ कितनी बार पढ़ाई पर बात की, हम बच्चे के शिक्षक से कितनी बार मिले या उनसे बात की, इस महीने की कुछ खट्टी मीठी यादें। और ये पोस्टर लगा के हम चाहते हैं कि दिल्ली के 18 लाख घरों में, दिल्ली के 18 लाख पेरेंट्स के घरों में ये पोस्टर लगा रहे, ये हम चाहते हैं। ये इस अभियान का आउटकम है, आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब मुझे कहीं कोई चाय पे बुलाएगा और वो अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल का पेरेंट हुआ और उसके घर में मुझे पोस्टर नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। अब ये मत सोचना कि वहां चाय पे बुला लो जहां पोस्टर लगवा दिया है। मैं किसके यहाँ चाय पीने जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता होता है, अचानक बनता है कार्यक्रम। जैसे आपके स्कूलों में सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है ना, मेरे घरों में भी सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए। वाकई बहुत बड़ी नींव हम रखने जा रहे हैं और ये एक बड़ी क्रांतिकारी शुरुआत होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से एक बार सर का अभिनंदन करें। और आज इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है आपके साथ, आपके द्वारा ये कार्यक्रम सफल होगा। और कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं और होते हैं कई लोग कि सांचे ही बदल जाते हैं। तो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री उन्हीं में से, एक बार जोरदार तालियों से सर का आभार। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री के.एस. उपाध्याय सर से वो आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी से मेरा अनुरोध, आप सब स्थान पर बैठे रहें। आपको ये बुकलेट तभी मिलेंगी जब यहाँ कार्यक्रम राष्ट्रगान के बाद संपन्न होगा। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम पेरेंट्स आउटरीच के मुख्य अतिथि, आप कृपया बैठ जाएं। मैं सर ने मुझे आदेश दिया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड लूँगा। आप बैठ जाइए प्लीज़। हमारे परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री और उससे ज़्यादा हमारी टीम एजुकेशन परिवार के मुखिया, मैं पूरे शिक्षा परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। जब आप हमें पेरेंट्स की कैटेगरी बता रहे थे तो मैं सोच रहा था मैं किस में आता हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत बहुत ज़रूरी है सही पेरेंटिंग का होना।
और शिक्षा और पेरेंटिंग, जो आप विकसित देश की बात करते हैं सर, उनका रास्ता इन्हीं दो चीज़ों से निकल के जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो समझ की बात कह रहे थे सर, जैसे माइक आपने दोनों किए, हमें समझ आ गया कि जब दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। बच्चे का रथ और गाड़ी जिसकी बात की, वो तभी चलेगा जब दोनों लोग, हम शिक्षा कर्मी और मेरे शिक्षक और परिवार यानी माता पिता साथ चलेंगे सर। तो ये बहुत सरल दोनों ही बातें, और इतनी सरलता से हमें समझा दी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बहुत बड़ा विजन दिया है पेरेंटिंग का, इसी मंच से हम उस पर खरे उतरने का, और हमारे जो स्कूल मित्र का जो हैं, ये शायद स्कूल मित्र भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अभिनव प्रयोग है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे ये 32,000 स्कूल मित्र और जो बाकी हमारे जो एसएमसी 12,000 हैं, वो सब मिलके आपके इस सपने को साकार करेंगे। मैं आपके लिए, इसके लिए सभी का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायिका आतिशी मैम का जो इस पूरे एसएमसी कार्यक्रम के कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके सर के विज़न को आगे बढ़ाने में हमारी ट्रेनिंग्स और उसमें हमारे साथ खड़ी हैं, और हर पल हमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और फीडबैक में हमारी मदद करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपकी सेंट्रल टीम एसएमसी का जो आपके नेतृत्व में काम कर रही है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रमुख सचिव शिक्षा महोदय जो हमारे इस शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, वो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, और इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमको प्रेरणा का स्रोत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूं अपने डायरेक्टर सर। मैं सबसे पहले ये पूरे 1050 प्रिंसिपल, मेरे एसएमसी और पेरेंट्स की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में पहला कार्यक्रम है, तो जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। और जिस तरह से आपने स्कूल इन कम्युनिटी और कम्युनिटी इन स्कूल की अवधारणा को बहुत सरलता के साथ हमको बताया, हम जरूर इसको प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे डीसीपीसीआर के बहुत ही जो बाल अधिकारों के लिए बहुत सजग प्रहरी हैं श्री अनुराग कुंदू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी साथियों को उनका फ़ोन कॉल बहुत, कोई भी बात हो आता रहता है और हमें आपसे निर्देशन मिलता रहता है। तो आपका, आपकी टीम, रंजना मैम का और जितने भी डीसीपीसीआर के लोग हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहना चाहूँगा अपने हमारे जो प्रिंसिपल एडवाइज़र सर हैं, एक अनपैरेलल्ड और इतने बड़े कल्पनाशील शिक्षा मंत्री की कल्पना में रंग भरना बहुत डिमांडिंग होता है सर, बहुत चैलेंजिंग भी होता है। उसको आप बखूबी रंग भर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे सारे अधिकारी, स्पेशली एससीईआरटी की टीम, नाहर सिंह साहब बैठे हुए हैं, और साथ ही रितिका डवास जी जो इस कार्यक्रम के बहुत ही प्रमुख ढंग से इसको कर रही हैं, आरटी के श्री मोहिंदर पाल जी जो इस कार्यक्रम में हैं, और मेरे सभी साथी, मेरे सभी सीनियर्स, मेरे सभी साथी, मेरे एसएमसी के सभी जितने भी मतलब इस दिल्ली मॉडल के एसएमसी की कई मैंने उनमें चर्चाएं सुनी हैं। आप निश्चित रूप से उसका एक हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है और हमारे लिए वंदनीय है। मेरे सभी एसएमसी साथी और जो शिक्षा मित्र हैं, उनका धन्यवाद। 40 पायलट स्कूल जो मेरे ही क्षेत्र में थे, ईस्ट और साउथ ईस्ट में, मेरे सभी एचओएस, मेरे सभी साथी, उनके एसएमसी, और सर जब कह रहे थे ट्रेनिंग्स का, मैम कह रहे थे, तो ये लोग मेरे मास्टर ट्रेनर की तरह सा काम करेंगे मैम, तो उसके लिए सभी का धन्यवाद। साथ ही मेरे केयर टेकिंग ब्रांच जो सीटीवी रविंद्र शर्मा जी और उनकी टीम जो इस कार्यक्रम में लगी है, और जिनका मैं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से नाम नहीं ले पाया, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट बनी है वो डीसीपीसीआर के द्वारा बनाई गई है, और वहीं पर और वहीं से इस कार्यक्रम को वो पूरे अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारी प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के लोगों के लिए। और सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं
यहाँ इस सदन में वे लोग बैठे हैं जो शिक्षा को नया मुकाम दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका आभार। मेरा आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जाते समय जब आप मटेरियल लेकर जाएंगे तो राइट साइड में आपको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर मिलेगा, वहां से अपना ये यूनिट का सारा लिटरेचर लेकर जाइएगा।